हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है। इंडियन एज अ is a foreign policy. There is the most important. There is important also the important point here. A major concern in the Indian as a foreign policy in the post Cold War period. There is the most important. The Indian as a foreign policy in the post Cold War period. The end of Cold War in 1989 was is both about the significant change in the international scenes and has a new policy problem for a various state in the developing world, including India. The new situation is made by great insecurity of complexity. For India, is the discriminations of the Soviet Union has a mean of uncertainty of several except by supply of weapon system, supply of spare parts, and diplomatic support on Kashmir and other is a political status issue in and outside the United Nations, and as a counter, the bait to the USA in the South Asia. During the last one decade and a half of international politics has undergone some major changes. The Cold War has ended, the world has become a unipolar. A number of states have declared it is a Cold War. A military bloc has lost their significance, and some such as bloc have dissolved and new regional economic blocs are shaping up, and globalization has giving rise to a new set of problems such as terrorism, money launderings and proliferations of weapons, global warming, etc. These problems are not endemic to any region but affect all the countries to some extent or other. This has forced many nation states which were a hetero to the enemy to the cooperate with each other to solve the problem which are universal in the nature. In this change international scenario, it has become imperative for the UNA to restructure and reform itself if it is to effectively respond to the emerging challenge. There is the most important. There is emerging of challenge. Military in Kashmir has emerged as the foremost challenge to our foreign policy. Pakistan and the Western countries blame India for violating human rights and denial of right to be self-determination. Gradually, India both a situation under control. Because of the Kashmir, Egypt of India is as a relation with the Pakistan sharply integrated. India is assessed to Pakistan of fanning travel through their crossed border terrorism in a Kashmir and other part of country. India is a conducted nuclear weapon test in 1998 is followed by Pakistan as tests. Pakistan the story to the further is a missives by the securities as sending its a soldier into the Kargil in order to cut off the Kashmir Valley from the rest of India. The India handled it to the challenge forming on effective. Now emerging Pakistan as a contractives and is a composite dialogues per se remain a challenge to India as a foreign policy because there is a great deal of push from the United States. Spread of terrorism to the corner behind is a Kashmir is a challenge as well as a opportunity for our foreign policy. Nowadays, India is interested in a foreign anti-terrorism coalition with many countries as a possible. That is the most important. Keeping so old is a friendship and looking for a new friendship in another challenge for our foreign policy. After the Cold War is ended, for example, India is interested in a strengthening of the relation without damaging in relation and the relation with their Arab countries. Similarly, India's foreign policy is a tackling is a new task like a deepening is economic and security cooperation with the United States.
will at the same time oppose the unilateral action against the Iraq, Yugoslavia. Finally, India is realizing the growing importance of economical aspect of foreign policy, and it is a try to establish a new basis for its relation with the neighborhood and countries in South Asia, China, and Southeast Asia countries. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है, जिसमें हम भारत की विदेश नीतियों के जो है विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसका दूसरा पॉइंट यही बताता है कि शीत युद्ध काल के बाद भारत की विदेश नीतियों के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे। यानी जब शीत युद्ध के काल के बाद, जब शीत युद्ध खत्म हो गया था, तो भारत की विदेश नीतियों के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से थे। कहते हैं 1989 में शीत युद्ध के अंत के बाद, देखिए यहाँ पर 1989 दे रखा है शीत युद्ध के अंत। देखिए ये तो जो दिया गया है 1989 वो डिक्लेयर किया गया था, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो 1991 में जो था बिल्कुल ही खत्म हो गया था, जब सोवियत यूनियन भंग हो गई थी। यानी जो था बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी, उस समय से जो है इसको वास्तविकता में माना गया। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कहते हैं यहाँ अंतर्राष्ट्रीय परिषद में महत्वपूर्ण बदलाव आए और इस प्रकार विकासशील देशों के लिए नीति संबंधी नई समस्याएं आई। यानी कोई भी देश अगर बनता है, कोई भी चीज़ बनाया जाता है, तो उसमें बहुत सी समस्याएं आती है, ये आपको भी पता है। जैसे मुझे हर एक बच्चा जो है कमेंट करते हैं कि सर आपका देखता हूँ समझ आता है, लेकिन दोबारा मैं रिसर्च करता हूँ तो नहीं आता है। तो मैं उन सभी बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि बच्चों, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके सेव करने में ही आपकी भलाई होती है। और बहुत से बच्चे ये भी कंप्लेंट करते हैं कि जब भी मैं रिसर्च करता हूँ दूसरे के वीडियो ही आते हैं। तो यही बात तो मैं भी आपको हमेशा कहता रहता हूँ कि तभी आप मेरे वीडियो को फ़ायदा उठा सकते हो जब चैनल सब्सक्राइब करके रखोगे। और दूसरी बात ये भी रहता है कि हमेशा ये भी कहता हूँ मैं कि जितना हो सके इस वीडियो को दूसरे बच्चे तक पहुँचाने में तिरपान स्टडी सेंटर का हेल्प भी करना है। तो ये बातें बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं दिया जाए तब तक जो है कोई भी नीति या कोई भी रूल रेगुलेशन सही से नहीं चल सकता है। चाहे वो पढ़ाई लिखाई का हो, चाहे कोई युद्ध का हो, चाहे राजनीतिक का हो, हर जगह जो है सभी की सहयोग की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना सहयोग से कुछ भी नहीं चल सकता है। तो यही बात यहाँ पर भी बताया गया कि इस प्रकार विकासशील देशों के लिए नीति संबंधी नई समस्या खड़ी कर दी, क्योंकि नई चीज़ बनाई गई, नई समस्या तो आना स्वाभाविक बात ही थी। यह नई स्थिति एक बड़ी ही जो कहते हैं अनिश्चितता और जटिलता का परिणाम ही था। भारत के जो लिए संबंधित संघ के जो है विघटन से कई अनिश्चितता उत्पन्न कर दी। यानी सोवियत संघ के विघटन के कारण कई बातें जो थी भारत के समक्ष जो है प्रस्तुत हो गई, जैसे कि युद्ध सामग्री की आपूर्ति, स्पेयर पार्ट की आपूर्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर और बाहर कश्मीर और अन्य राजनीतिक मामलों में राजनीतिक समर्थन, और जो है दक्षिण एशिया में अमेरिका का विरोध पक्ष। तो ये सारी बातें जो थी भारत के लिए एक अनिश्चितता का दौर उत्पन्न कर दी। पिछले 1.5 दशक में जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव भी हुए और शीत युद्ध के अंत हो चुका है और विश्व एक ध्रुवीय बन गई थी। कई राष्ट्र विघटित भी हो चुकी थी और शीत युद्ध जो है सैन्य गुटों ने अपनी महत्ता खो दी थी। यानी शीत युद्ध की जो है सैन्य गुट में जो बिल्कुल ही महत्ता खत्म हो गई थी। इस प्रकार के गुट जो थे भंग हो चुके थे और नए क्षेत्रीय आर्थिक गुट बन रहे थे। वैश्वीकरण ने नई समस्याओं को जन्म दे दिया, और जैसे कि आतंकवाद, मृदा समृद्धि, युद्ध शस्त्रों की संख्या में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग आदि। कहते हैं जैसे ही 2 ध्रुवीय का जो है अंत हुआ, बहुत मुद्दे जो थे सामने खड़े आ गए, जिसमें से आतंकवाद जो था सबसे बड़ी मुद्दा और सबसे जटिल मुद्दाओं में से एक मुद्दा था। ये सभी समस्या किसी क्षेत्र विशेष को नहीं थी, बल्कि सभी देशों को किसी न किसी सीमा तक प्रभावित जरूर करता था। यानी देखा जाए तो आपको पता है कि ये सारी चीज़ें जो मैं अभी बोला था वो सिर्फ एक देश की समस्या नहीं हो सकती है। यानी आतंकवाद, मृदा समृद्धि, युद्ध शस्त्रों की संख्या में वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग, ये जो थी विश्वव्यापी थी और हर देश जो था इससे जो 2-4 हाथ कर रहा था, और ये बहुत बड़ी विडंबना थी सभी देशों के लिए। इसके कारण वे देश जो अभी तक समस्याओं का हल करने में सहयोग देने को तैयार नहीं थे और स्वभाव से एक ही प्रकृति के थे, वो भी सहयोग के लिए बाध्य हो गए, क्योंकि समस्या बहुत जटिल थी और सभी देशों को समर्थन प्राप्त होना भी स्वाभाविक बात थी। इस परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय परिक्षेप में संयुक्त के लिए यह अवश्य हो गया कि वह इन चुनौतियों का प्रभावकारी उत्तर देने के लिए स्वयं को परिवर्तन कर दे। ये बहुत ज़रूरी बात थी। यहाँ पर हमारी विदेश नीतियों के लिए कश्मीर में आतंकवाद सबसे बड़ी चुनौती थी। हमारे देश के लिए विदेश नीतियों की
अंतर्गत कश्मीर जो है आज भी बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रखी है, और इसमें खड़ी जो कर रही है आतंकवादी कर रही है, और आतंकवाद जो है सदैव चुनौती भारत को देती ही रहती है। पाकिस्तान और पश्चिमी देशों ने भारत पर मानवाधिकार के हनन और आत्मनिर्णय के अधिकारों का अनदेखी करने का आरोप सदैव लगाता ही रहा है, परंतु धीरे धीरे भारत इस स्थिति को नियंत्रण में ला रहा है। कश्मीर विवाद के कारण भारत पाक संबंध तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को जो है सीमा पर आतंकवाद और देश के अन्य भागों में आतंकवाद फैलाने का जिम्मेवार ठहराया है। यानी भारत ने सदैव ही पाकिस्तान को जो है आतंकवाद की जो है क्रियाकलाप में जो है दोषी पाया है। 1998 में जो है भारत ने परमाणु परीक्षण किए, और उसके बाद पाकिस्तान ने भी ऐसे परीक्षण किए। पाकिस्तान ने संदेशपूर्ण रूप से कारगिल में अपने सैनिकों को भेजकर कश्मीरी घाटी को भारत से अलग करने का एक और अनिष्ट कार्य किया। भारत ने इस चुनौती का जो है दृढ़तापूर्वक सामना किया, और अब पाकिस्तान को सकारात्मक और सर्वैकता वार्ता द्वारा समझाना भारत की विदेश नीति की एक अहम चुनौती है, क्योंकि पाकिस्तान को समझाना बहुत ही दुर्गम कार्य है, क्योंकि इसके पीछे उसे अमेरिका की शय प्राप्त है। कश्मीर के जो है अतिरिक्त अन्य हिस्सों में भी आतंकवाद को रोकना भी हमारी विदेश नीति के लिए एक अवसर और चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। भारत के अधिकांश देशों के साथ आतंकवाद विरोधी संबंध बनाने में गहरी रुचि है, और भारत ने सदैव ही इस आतंकवादी के प्रति जो है अपना रवैया प्रस्तुत किया है, और इनका जो रवैया थी हमेशा पॉजिटिव थी। शीत युद्ध के अंत के बाद पुराने मित्रों को कायम रखना और नए मित्र तलाशना भी हमारी विदेश नीति के लिए एक अन्य चुनौती थी। उदाहरण, अरब देश के साथ संबंधों को खराब किए बिना ही भारत इजराइल से अपने संबंध मजबूत करने के इच्छुक है, और इसी प्रकार भारत की विदेश नीति का एक कार्य अमेरिका के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को मजबूत बनाना भी एक इम्पोर्टेंट कार्य में से देखा जा सकता है। परंतु इसके साथ ही वह इराक और यूगोस्लाविया के विरुद्ध एक पक्षीय कार्रवाई के विरुद्ध है। अंत में भारत अपनी विदेश नीतियों में आर्थिक पक्ष के महत्व को महसूस कर भी रहा है, इसलिए यह अपने पड़ोसी देश चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया देशों के साथ संबंधों का एक नया आधार देने के लिए प्रयासरत है।